Welcome, my dear students of grade 6. Today we will do the back exercise and the question answer of the chapter 6 Geography, that is land and sea topography. In this chapter, we have studied about the topography of land and topography of the ocean floor. It means we have studied about the major landforms that are made by nature on the land and the sea. And today we will do the back exercise and the question answer of this chapter. Chapter 6 Geography, Land and Sea Topography. First of all, we will do the multiple choice questions and you have to select the correct answer. First is, the Himalayas are dash mountains. Himalayas कौन सी mountains हैं? तो we have the 4 options and the correct answer is fault mountains. Himalayas are the fault mountains. हमारी mountains की अलग अलग types होती है, volcanic, fault, ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल. तो हमारी हिमालयस कौन सी माउंटेन्स हैं? दैट इज फॉल्ट माउंटेन. नेक्स्ट इज दैट द साइंस ऑफ फॉर्मेशन एंड ओरिजिन ऑफ द लैंड फॉर्म इज कॉल्ड. दैट इज जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, geography or geology. The correct answer is geomorphology. It is a science of formation and the origin of landforms. Next is the uplifted blocks of the block mountains are called. जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, जो उसका अपलिफ्टेड पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो वी हैव द डिफरेंट ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज होस्ट. The uplifted part of the block mountain is called host. Next is, an elevated area of a labeled tableland is called. Elevated means जो थोड़ा सा हाइट पे एरिया होता है. टेबललैंड मीन्स फ्लैट लैंड का एरिया, उसे हम क्या कहते हैं? तो वी हैव द डिफरेंट ऑप्शन, माउंटेन, प्लेट्यूज, हिल्स एंड प्लेन्स. द करेक्ट आंसर इज प्लेट्यूज. That area which is elevated in the level tableland is called plateau. Next is, this is called the roof of the world. हम किसको कहते हैं roof of the world? Tibetan plateau, Andean, Colorado और Deccan plateau. If you know the answer, you can write in the comment box. Okay, the correct answer in this option is Tibetan plateau. Tibetan plateau is known as the roof of the world. Next is our fill in the blanks. Rivers flowing throughout the year are called dash rivers. जो rivers सारा साल बहती रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? perennial rivers. तो correct answer is perennial rivers. Students, if you know the answer, you can write in the comment box. Next fill in the blanks is, dash and dash mountains are types of fold mountains. वो कौन सी माउंटेन्स हैं जो फोल्ड माउंटेन्स की टाइप्स हैं? दैट इज ओल्ड एंड यंग माउंटेन्स आर द 2 टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स. नेक्स्ट, द वर्ड डैश रेफर्स टू अ डीप प्लेन. किस वर्ड का मीनिंग डीप प्लेन्स होता है? दैट इज एप्सियल. करेक्ट आंसर इज एप्सियल. माउंटेन्स बिल्ट इन सीरीज ऑफ पैरेलल चेन ऑफ नाउन एज. अगर माउंटेन्स एक ही सीरीज़ में बनी होती है लगातार, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज रेंज. दैट इज़ नोन एज रेंज मीन्स माउंटेन रेंज विच आर बिल्ट इन ए सीरीज ऑफ पैरेलल चेन. नेक्स्ट, अनब्रोकन फ्लैट लैंड सरफेस इज कॉल्ड. जो अनब्रोकन फ्लैट लैंड होगी उसे हम क्या कहेंगे? दैट पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड plains. Clear that? So these are the fill-ups in this chapter. Next we will do the true false. The first is, about 29% of the lithosphere is covered by water and 71% is land.
तो जहाँ वो कह रहा है कि 29% हमारा क्या है, अर्थ का पानी से कवर है और 71% लैंड है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज 71% इज़ वाटर एंड 29% इज़ कवर्ड विथ लैंड। Next is external processes cause the upliftment of subsidence on the earth surface। जो एक्सटर्नल प्रोसेसेस होते हैं मीन्स जो रिवर फ्लो करती हैं, जब विंड्स चलती रहती हैं, उनसे कोज के अपलिफ्टमेंट या सब्सिडेंस होता है अर्थ सरफेस में, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। तो आंसर इज फॉल्स। Major landforms formed by the internal processes are plains and some plateaus। जो internal processes means जो के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जो मूवमेंट होती रहती है, उस कारण प्लेन्स और प्लेट्यूज बनते हैं। आंसर इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, द लैंडफॉर्म्स वियर लैंड एंड सी मीट हैव नो सीनिक ब्यूटी। लैंडफॉर्म जहाँ पर लैंड और सी दोनों आपस से मिल जाते हैं, तो वहाँ पर कोई अच्छी सीनिक ब्यूटी, मतलब अच्छा कोई सीन क्रिएट नहीं होता, नेचुरल ब्यूटी नहीं बनती। तो ये स्टेटमेंट गलत है, वहाँ पर एक नेचुरल ब्यूटी बन जाती है। तो इसका आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज ओशन ट्रेंचेस आर द डीप एंड नैरो डिप्रेशन ऑन द ओशन फ्लोर। ओशन ट्रेंच क्या होते हैं? डीप और नैरो डिप्रेशंस होते हैं, मीन्स डीप तक गए होते ओशन फ्लोर के अंदर। तो आंसर इज ट्रू। ओशन ट्रेंचेस हम उन्हें कहते हैं जो ओशन के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली और नैरो डिप्रेशन, गहरी खाई बन जाती है, उसको हम ओशन ट्रेंच कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज आवर वेरी शॉर्ट आंसर ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टेबल लैंड। टेबल लैंड क्या होती हैं? एन एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड मीन्स थोड़ा सा हाइट पे, और फ्लैट टॉप टेबल लैंड इज कॉल्ड प्लेट्यूज। फॉर मोर डिटेल you can revise this chapter and you can see the video of this chapter. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर कैन यू फाइंड द ग्लेशियर। हमें ग्लेशियर कहाँ मिलते हैं? इन द हाई माउंटेन्स। हाई माउंटेन्स, बहुत हाइट पे माउंटेन की हमें ग्लेशियर्स मिलते हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? स्नो की रिवर्स होती हैं, बहती हुई नदियाँ होती हैं जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। नेक्स्ट इज डिफाइन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। Where the continents gently slope towards the ocean floor is called the continental shelf। जहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंट मीन्स जो लैंड एरिया फिनिश होता है और उसकी ढलान ओशन फ्लोर की तरफ जाती है, दैट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फॉर मोर डिटेल you can see the videos of this chapter. Next question is give two example of the old fold mountains। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के कोई दो एग्जाम्पल देने हैं। तो अरावलीज इन इंडिया एंड उरास बिटवीन एशिया एंड यूरोप आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। क्लियर दैट? So that is about the back exercise and very short answer. In the next video we will do the short answer and the long answer of this chapter. Thank you for watching this video.